Next question of exercise 14.2 is question number 2. 4p factorize 4p square minus 9q square. आपको factorize करना है 4p square minus 9q square. ठीक है, here we'll use third identity. According to third identity, we have a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. Right? So a के place पे here what you have 4p square, but 4 का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ p का स्क्वायर है. फर्स्टली आप स्क्वायर में चेंज करोगे. here you have 4p square, you can write down it as 2p square minus 9q square means 3q square. So now it's of the form a square minus b square. So we can write down it as a plus b into a minus b. So it will be 2p plus 3q into 2p minus 3q. Like this. We have to solve this question. We have to factorize. And we can see here it's of the form a square minus b square. And we can apply third identity. Like this we can solve. Let's try one more. The next part is here 63a square minus 112b square, and obviously first step will be there to just take common, जैसे हम सब में करते हैं. So firstly we have to take common here. तो क्या कॉमन लेंगे? 63 और 112 दोनों 7 के टेबल में जाते हैं. Take 7 outside. What will be left inside? 9a square minus 16, right? 16b square. राइट. सो 7 तो हमने कॉमन ले लिया, 7 इज ऑलरेडी आउटसाइड, वो एक फैक्टर हो गया. अब ये वाले फैक्टर को सॉल्व करेंगे विद द सेम मेथड बाय फॉर्मिंग इट एज, बाय कीपिंग इट एज a square minus b square. So we can write down it as 3a square minus 4b square. ठीक है, और 7 हमारे पास एज इट इज रहेगा फैक्टर में. इसे हम ओपन कर देंगे. अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर को 3a प्लस 4b, 3a minus 4b, and this is answer here. Also 63 is not a square number and 112 also. So ये किसी का स्क्वायर है ही नहीं, तो हम इसे a square minus b square की फॉर्म में लिख भी नहीं सकते. So firstly we'll take common, then we'll just keep in the form of a square minus b square. Next, let's try one more here. 49x square minus 36. 49x square, that is 7x square. 36, that is 6 square. So here it will be 7x plus 6 using third identity, 7x minus 6, right? So like this we can form third identity and we can do the factorization. Next is here 9x square, sorry 16x cube x raised to power 5 minus 144 x raised to power 3. Here also firstly we'll check whether what is common here, क्या common आता है. So 16 is common here already, because we know that 16 nines are 144. So 16 भी common लोगे और x की minimum power that is 3, x3 भी common हो जाएगा. What will be left inside? x raised to power 2. 16 भी outside हो गया, x की 5 में से x की 3 पावर आउटसाइड हो गई, तो x रेज टू पावर 2 लेफ्ट रह गई यहाँ पे, माइनस 144 डिवाइड बाय 16 9, और x रेज टू पावर 3 आउटसाइड हो गया. ठीक है, अब जो कॉमन आ सकता था हमने उसे कॉमन कर दिया. इनसाइड को फिर से वही फैक्टराइज कर दो. 9 को आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a minus b.
like this. Firstly we'll take common and then we'll apply the identity if it's possible. पॉसिबल नहीं होती तो भी आपके पास क्वेश्चन ये था 7x माइनस 14 को फैक्टराइज करो, तो आपने क्या किया 7 को कॉमन लिया, क्या रह गया इनसाइड x माइनस 2। अब x माइनस 2 तो ऑलरेडी सिंगल पावर में है, लीनियर है, x की पावर 1 है, हमें नीड ही नहीं आगे, हम इसको आगे एक्सपेंड इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते, फैक्टराइज कर ही नहीं सकते, ये लास्ट फैक्टर हो गया, आपके पास पावर इज 1 हियर। ठीक है, तो इसको हम यहीं तक छोड़ देते हैं। अगर हमारे पास इसी के प्लेस पे हो जाए 7x माइनस 63, 7x स्क्वायर, तो आप क्या करोगे 7 कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 आगे फिर ओपन कर सकते हो क्योंकि स्क्वायर है और 9 है, 9 भी किसी का स्क्वायर होता है। द सेम थिंग इज हेयर नाउ, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, 9 मतलब 3 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप आगे लिख सकते हो a plus b into a minus b, the same thing we have done here. Okay, next it's l plus m square minus l minus m square. ठीक है, इसमें क्या करेंगे, विल टेक इट एज सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है बिल्कुल, एल प्लस एम को ए रख दो, एल माइनस एम को बी, और आइडेंटिटी अप्लाई कर दो लाइक दिस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो ए के प्लेस पे अगर मैं एल प्लस एम रख दूं, बी के प्लेस पे एल माइनस एम, तो राइट साइड पे भी यही करेंगे, ए के प्लेस पे एल प्लस एम, बी के प्लेस पे एल माइनस एम, फिर ए के प्लेस पे एल प्लस एम, लेकिन जब प्लस होता है तो ब्रैकेट नहीं अप्लाई करते, जैसे ही माइनस साइन आ गया, यहाँ पे ए और बी के बीच में माइनस साइन है, जैसे ही माइनस आ गया हमने आगे लिख दिया एल माइनस एम ब्रैकेट में। ठीक है, ए के प्लेस पे एल प्लस एम, बी के प्लेस पे एल माइनस एम, यहाँ भी ए के प्लेस पे एल प्लस एम, बी के प्लेस पे एल माइनस एम, लेकिन माइनस बीच में साइन है तो बी पे ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि बी की वैल्यू एल माइनस एम है, एक टर्म में, एक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स है, और जब ज्यादा टर्म्स होती हैं तो उनको हम ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक है, अब सोल्व कर दो, एल प्लस एल 2l हो गया, एक एम पॉजिटिव एक एम नेगेटिव कैंसिल हो गया ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2l मल्टीप्लाई एल प्लस एम, अब वही बात आ गई, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आ गया तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस एल प्लस एम। ठीक है, एल माइनस का हो गया, एम प्लस का हो गया, अब फिर यहाँ सोल्व कर दो, एक एल नेगेटिव एक एल पॉजिटिव, क्या रह गया एम प्लस एम 2m, 2l को 2m से मल्टीप्लाई कर दो, कांस्टेंट विल बी मल्टीप्लाई बाय द कांस्टेंट दैट इज 4, एल और m को करोगे तो lm, सो द आंसर इज हियर 4lm. Now next is, it's too easy and simple, 9x square y square minus 16. So nothing is common here and we can form in the square also as 3xy square. x का ऑलरेडी स्क्वायर था, y का भी 9 था, 9 को हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर, तो ये पूरा किसका स्क्वायर हो गया 3xy का, माइनस 4 स्क्वायर। अब फिर से टेक इट एज a, 4 as b, then it will be a plus b, that is 3xy plus 4 into a minus b, that is 3xy minus 4, like this. Next is, it's x square minus 2xy plus y square माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ये फिर से सिंप्लीफाई नहीं है प्रॉपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, सी दिस एक्सप्रेशन जो ब्रैकेट में है, सबसे पहले क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इफ वी try to solve it we can see here it's forming an identity, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर के, राइट, और साथ में माइनस जेड स्क्वायर, we know that it's equal to x minus y square and already there is minus z square,
ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy जो है वो इक्वल होता है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर के, और साथ में माइनस जेड स्क्वायर। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म का। एक्स माइनस वाई को रख दिया ए, जेड को रख दिया बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी, ए माइनस बी, दैट इज एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। एक बार एक्स माइनस वाई में जेड प्लस कर देंगे, एक बार एक्स माइनस वाई में जेड माइनस कर देंगे अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 25a square minus 4b square plus 28bc minus 49c square. So it's also same as the previous question. This little difference is here कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये a स्क्वायर है, वेरिएबल देखें, क्योंकि वैसे तो हम 2 लें, कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा यहाँ पे, ना कोई ऐसी आइडेंटिटी बन रही, तो हम यहाँ से देख सकते हैं, देखो ये b स्क्वायर बी सी स्क्वायर, इसको लेकर आप एक आइडेंटिटी बना सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे माइनस साइन है। आई होप यू आर गेटिंग इट कि बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, यहाँ पे सेम एक आपके पास वेरिएबल्स है, एक एक्सप्रेशन बन रहा है आपके पास, और इससे आप आइडेंटिटी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, और फिर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या रहेगा 4b स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे। एक तो जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तब साइन चेंज होते हैं, एक जब हम ब्रैकेट लगाते हैं तो भी साइन चेंज होते हैं। 4b स्क्वायर माइनस का था, पॉजिटिव हो गया, 28bc पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, 49c स्क्वायर नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, अनब्रैकेट क्लोज। हमने माइनस को कॉमन ले लिया इसको अलग से सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके बिना सॉल्व ही नहीं होगा। अब 25a स्क्वायर का मतलब तो हो गया 5a स्क्वायर, और इसको एज इट इज रहने दो, इसको ओपन करो, 4b स्क्वायर मतलब 2b स्क्वायर, 49c स्क्वायर मतलब 7c स्क्वायर, बीच में आएगा 2ab माइनस 2, a यहाँ पर क्या है 2b, और c यहाँ पर क्या है b, मतलब यहाँ पे क्या है 7c। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म का बन रहा है ये अब आपके पास। अब आप आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर। सो a यहाँ पर क्या है 2b, b यहाँ पर क्या है 7c, तो ये किसके इक्वल हो गया 2b माइनस 7c स्क्वायर, राइट। नाउ अगेन वी आर गेटिंग द आइडेंटिटी हियर, ये कुछ किस फॉर्म का हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, मीन्स a प्लस बी, a माइनस बी करेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है, a के प्लेस पे है 5a, b के प्लेस पे प्रॉपर एक्सप्रेशन है 2b माइनस 7c, तो ये हो जाएगा 5a माइनस प्लस, सॉरी अगर आप लो एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस 2b माइनस 7c, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि जब ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट में नंबर है तो मतलब सॉरी जब आगे यहाँ पे ऑलरेडी वैसे भी ब्रैकेट गिवन है तो आप ब्रैकेट में ही रखोगे, और आगे माइनस है, जब भी माइनस साइन होता है तो ब्रैकेट कंपलसरी होती है लगानी, 5a माइनस 2b माइनस 7c एंड विल यूज ब्रैकेट ऑल्सो हियर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट है। ठीक है, अब हमारे पास हो गया था 5a का स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर फिर से आइडेंटिटी लगा दी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ पर बस b 2b माइनस 7c है। ठीक है, नाउ हियर दिस इज ऑल्सो राइट एंड यू कैन ओपन द ब्रैकेट ऑल्सो। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, क्योंकि गलत नहीं करना इसके आगे, यहाँ तक फिर भी ठीक है, लेकिन अगर इसके आगे आपने गलती कर दी तो आपका गलत हो जाएगा। एक तो ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है माइनस से पहले यहाँ पे। ठीक है, अब ओपन कर दो 5a, जब बाहर प्लस साइन होता है ब्रैकेट के तो हमारे पास कुछ चेंज नहीं होता। ठीक है, और जब माइनस साइन होता है हमारे पास ब्रैकेट में तो हमारे पास अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो 2b तो नेगेटिव हो जाएगा और 7c
पॉजिटिव हो जाएगा एंड दिस विल बी आंसर हियर 5a plus 2b minus 7c into 5a minus 2b plus 7c. Again I am repeating here what we have done. सबसे पहले हमारे पास एक्सप्रेशन था 25a square minus 4b square plus 28bc plus 49 minus 49 c square. हमने सबसे पहले बी स्क्वायर 28b ये बी सी और सी स्क्वायर को अलग से कॉमन ले लिया माइनस बाहर लेकर ताकि हम इसकी आइडेंटिटी बना सकें. फिर हमने इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab में देखा. ठीक है, तो किसके इक्वल हो गया ये a माइनस बी होल स्क्वायर के, मतलब 2b माइनस 7c स्क्वायर के. फिर हमने देखा कि फिर से आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने कर दिया a प्लस बी और a माइनस बी. ठीक है, दैट वाज द क्वेश्चन.